अभी दिख रही सबको स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Okay. So we have started the revision of chapter number 4, that is linear project management framework. We have already completed this chapter number first. So last lecture we have seen in the revision the overview of the project management. In that we have seen what is project management. So project management is nothing but the application. It is the application of knowledge, skill, tools, and technique to project activities to meet the project requirements. We have seen the overview of the project management. What are the different feature of the project? Then also yesterday we have seen the project classification. There is a different type of projects like engineering and construction. Then a project like new system means software project. In engineering and construction you have a clear physical output of your project, but in when you are talking about the computer project or software project, at that time you not seen the physical output of that particular project. Then we have started the project management life cycle. That is initiating initiating phase, planning, executing, monitoring, controlling, and closing. So this is the project management life cycle. So we have talking about we have how the case study of that particular hotel management billing system with this particular project management लाइफ साइकिल है कि नहीं संकेत? हमने देखा ना कल ये लाइफ साइकिल संकेत. Yes, sir. Then we have seen the different phases of that particular project management cycle. Project initiation, then second phase, that is planning and design, then execution and controlling, that is monitoring and controlling, then project maintenance and closure of the particular project. Now today we are talking about what is the project management process. The next point 1.3, that is project management process. So there are different project management process which include the scope management, task management. So the scope refers to the work required to complete a project, so which is defined by the work breakdown structure during the planning phase. Means we have to break down the structure of the project. You have to break down the different work which is required to complete that particular project according to the requirement of the end user. So according to the requirement of the end user you break down द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. जैसे कि हम बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसको मॉड्यूल में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हो. द सेम वे you have to break down the scope of that particular project. So in simple term, scope management consists including the all activities, then and clarifying what won't be done. So this is the base of the base for the scheduling, budgeting and the task management. So scope define कर देता है कि कौन सा काम कब करना है, कौन करने वाला है, उसका बजट कितना है. जो also it include the task management. task management means what, कौन सा टास्क कौन से टीम मेंबर को असाइन करना है, उसको कितनी देर लगेगा. सो ऑल दीज थिंग्स डिफाइन द स्कोप मैनेजमेंट. आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? दैट इज स्कोप मैनेजमेंट. उसका स्कोप आपको डिफाइन करना है. सबने आपके अपने ये चालू कर दो तो मुझे समझ में आएगा. तो देर इज टू वे कम्युनिकेशन. यस्टरडे आई हैव ऑल्सो मैंने आपको बताया था हमारा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि खाली मैं ही बोलते जाऊंगा, आप कुछ है वहाँ पे नहीं है या मोबाइल छोड़ के चले गए कहाँ पे घूमने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. So scope management, it in simple terms, scope management consists or it include the different activities. It clarify
what is to be done and what is not to be done. It is base for scheduling, budgeting and task management. So it defines the scope of that particular project. Then next is task management. So मैनेजमेंट का मतलब आपको तो सब पता है. सो यू आर द स्टूडेंट ऑफ MCA मैनेजमेंट. सो माई expectation is that you one student, at least one student should explain what is the task management. आपके सामने तो सब कुछ है. What is the task management? So shall I read the name of the student? कौन बताता है मुझे व्हाट इज अ टास्क मैनेजमेंट? टास्क मैनेजमेंट में क्या करना है हमें? टास्क मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? वो टास्क है, वो टास्क कौन करने वाला है, कब करने वाला है, किसको आसान काम करने हैं, कौन से टीम मेंबर को टास्क देनी है. सर उस दिस टास्क प्रोसेस उस टास्क के ऊपर कौन से कोई दूसरे टास्क डिपेंडेंट है क्या, तो वो पहले टास्क कंप्लीट करनी है. सो दिस इज नथिंग बट द टास्क मैनेजमेंट, है क्या नहीं? द सिंपल वे. हाँ यस, कौन बोलता है? sir, task management is the process begin with careful planning. Task can be assigned to the team member. Okay, task can be assigned. I think Andhar is there, na? Yes, sir. Okay. Yes. और कौन बताता है व्हाट इज टास्क? अपने लैंग्वेज में बताओ मुझे, नो इश्यू. अच्छे तरीके से बता सकते हैं शायद रोहन. सो टास्क मैनेजमेंट में हमें क्या करना है? सो दिस प्रोसेस बिगिन विथ वेरी केयरफुल प्लानिंग. आपको बहुत बारीक तरीके से इसकी प्लानिंग करना पड़ता है. अभी वाई वी हैव टू वेरी केयरफुल, we have to take very careful planning of that particular task management, because sometimes what happen, one task is dependent on another task. जैसे कि टास्क ए है, टास्क बी है, और टास्क बी है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है? ए के ऊपर. सो ए टास्क कंप्लीट होना चाहिए पहले, बाद में बी शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? ए टास्क कंप्लीट होने के बाद ही टास्क बी का काम शुरू होने वाला है. So you have to be very careful while managing the task. You have to see the dependencies of the particular task, whether a particular task is dependent on other task or not. If that particular task is dependent on the previous task or other task, so you have to complete that particular task. So you have to be very careful when you are doing the planning of that particular task management. So task management is nothing but you have to manage the task. You have to assign the task to the team member. So what are the different tasks needed to complete that particular project? That particular task has to be assigned to the different team member. Also you have to check the task dependencies, and according to that particular task dependencies you have to complete the task. So this is nothing but the task management in a project management process. Understood what is the task management? बोलिए फास्ट, मुझे आगे जाने के लिए. Yes, sir. Okay. Then we have seen the next resource management. We are talking about the project management process. उसमें थर्ड कौन सा है प्रोसेस? फर्स्ट होगा स्कोप मैनेजमेंट, सेकंड हमने देखा टास्क मैनेजमेंट, देन थर्ड इज रिसोर्स मैनेजमेंट. अभी क्या होता है ये रिसोर्स मैनेजमेंट? हमने देखा है. व्हाट इज दिस रिसोर्स मैनेजमेंट? यस, ऐश्वर्या. What is resource management? Aishwarya is there. मोबाइल आपका चालू है, किसी का ये स्पीकर चालू है, म्यूट कर दो उसको, आवाज़ बहुत आ रहा है. देखिए. यस,
फिर कोच वैष्णवी, what is resource management? Process consists in effectively identifying, acquiring, and allocating. बोलिए बोलिए बोलिए। रिसोर्स मैनेजमेंट करना है मीन्स क्या करना है आपके भाषा आपके इसमें बोलिए आप। रिसोर्स, व्हाट इज मीन बाय रिसोर्स? रिसोर्स मीन्स व्हाट? आपके जैसे कि कुछ टीम मेंबर होते हैं, आपकी टीम है, व्हाट इज दैट? दैट इज अ रिसोर्स। पैसा है, द कॉस्ट विच required to complete that particular project, that is a resource. Means allocating the resources such as people, capital, equipment, all these are the resources which is required to complete the project, which is required to complete the task, and which is useful to complete your project, deliverable project. When you have the clear idea about your project, what is to be done, then you have the idea what are the different resources required to complete the project, to complete the each and every activities which is required for that particular project. So you must identify the different resources which are required to complete the project, and allocating that particular resources such as people, capital, equipment, material to complete the task, and by default it will complete your project. So you have to manage all these particular things. People manage करना है means what? इसको resource, people means what? It is one of the your resource which is required to complete the project. So people को manage करना है, उस resource को manage करना है means what? You have to see that कौन से लोग कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कौन से लोगों को कौन सा टास्क असाइन करना है. नेक्स्ट रिसोर्सेज इज कैपिटल. कैपिटल मीन्स व्हाट? इट इज अ कॉस्ट. वो कैसे मैनेज करनी है आपको देखना पड़ेगा. इक्विपमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, व्हाट आर द डिफरेंट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड to complete the task. So you have to manage all these things. Then what are the different materials required to complete a particular task? So you have to manage all these particular things. मैनेज करना है मीन्स क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल पीपल को मैनेज करना है. जैसे कि आपके पास 4-5 प्रोडक्ट है, 4-5 प्रोजेक्ट है. एज अ project manager you have 2 or 3 projects in your hand. So you have a team of 50 employee. So 50 लोग हैं आपके पास काम करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए. So you have to take a decision which people, which employee will work on which project. आपके पास 50 लोग हैं, आपके हाथ में 3 प्रोजेक्ट है, तो 50 लोगों को 3 प्रोजेक्ट कौन से असाइन करने हैं आपको ये देखना पड़ेगा. हर प्रोजेक्ट को कितना पैसा लगने वाला है, कौन सी जगह पे कितना पैसा लगने वाला है. अगर कोई एम्प्लॉय न्यू रिक्रूटमेंट करनी है प्रोजेक्ट के लिए, खास प्रोजेक्ट के लिए, तो न्यू रिक्रूटमेंट करते हो तो उसको पैसा कितना लगने वाला है वो देखना पड़ेगा आपको. उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या लगने वाला है. कंप्यूटर है आपके पास तो वो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है या नहीं है, ठीक है नहीं. सो यू हैव टू manage all these particular resources. This is about the resource management. Understood? Vaishnavi? Yes, sir. Okay. Next management process, that is schedule management. कौन बताता है मुझे what is the schedule management? Schedule को manage करना है. Schedule management process can be divided into 3 sub processes, that is estimating, scheduling and controlling. First, estimate the time for each activity. आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा कौन से एक्टिविटी को कितना टाइम लगता है. माइलस्टोन एंड डिलीवरेबल्स, उसको कितना समय लगेगा, कितना देर लगेगी उसको, एंड यू हैव टू डिसाइड द डिलीवरेबल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर you can say the activity. Then develop the schedule based on those time estimate, and once the execution phase begin, monitor the project schedule regularly.
सो आपको पहले ही उसको शेड्यूल बनाना पड़ेगा इनिशिएशन फेज होने के बाद। इन इन द अभी ये शेड्यूल मैनेजमेंट कौन से फेज में आ जाएगा बताइए मुझे, हमने तो देखा है लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, वो कौन से फेज में आ जाएगा शेड्यूल मैनेजमेंट? इनिशिएशन फेज में आ जाएगा या प्लानिंग एंड डिजाइन में आ जाएगा शेड्यूल मैनेजमेंट? एस्टिमेटिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। एस्टिमेट कब करते हो आप, कौन से फेज में करते हो? शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग? सर प्लानिंग में एस्टिमेट करते हैं। ओके, कौन बोला? सर फीजर। हाँ, वेरी गुड। तो प्लानिंग में हम एस्टिमेट करते हैं, प्लानिंग में हम एस्टिमेट करेंगे, शेड्यूल करेंगे, है ना, प्लान बनाना है कि नहीं, बजट बनाएंगे उसका, प्रोजेक्ट के लिए कितना है कितना नहीं। सो शेड्यूल मैनेजमेंट इंक्लूड इन दैट पर्टिकुलर प्लानिंग एंड डिजाइन फेज। Then develop a schedule based on time estimates. Once the execution phase begin, monitor the project schedule regularly. अभी ये शेड्यूल कब आपको मॉनिटर करना पड़ेगा? जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन फेज चालू होता है या प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, यू हैव टू द मॉनिटर प्रोजेक्ट शेड्यूल रेगुलरली, है क्या नहीं? आपको वो मॉनिटर करना पड़ेगा, बराबर। जैसे कि आपने कुछ काम करने को लिया हाथ में, फॉर एग्जांपल आपने जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपके खुद का असाइनमेंट है, कुछ सर ने आपको असाइनमेंट दी है प्रोजेक्ट बनाओ करके। तो प्रोजेक्ट बनाते वक्त आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी। यू हैव टू मॉनिटर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, you have to monitor the time, you have to monitor the particular budget of that particular, when that particular project start, है क्या नहीं, वो टाइम कितना लगने वाला है। जैसे कि आपकी एग्ज़ाम है 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, और आपका प्रोजेक्ट ख़त्म होने को 10-12 दिन बचे हैं, तो आपको उसके पहले ही वो ख़त्म करना पड़ेगा, एम आई राइट? सो दिस इज़ नथिंग बट द मॉनिटरिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट। आपको फास्ट काम करना पड़ेगा, हर चीज़ उसकी देखनी पड़ेगी। सो यू हैव टू मॉनिटर ईच एंड एवरी थिंग, मीन्स यू हैव टू मॉनिटर द रिसोर्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आल्सो। शेड्यूल देखना पड़ेगा, शेड्यूल को मॉनिटर करना पड़ेगा, कॉस्ट को मॉनिटर करना पड़ेगा, डिफरेंट रिसोर्सेस को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा when the particular project starts. So this is nothing but it is a schedule management. Then next project management process, that is a risk management. So who is going to manage this particular risk in the project? कौन करेगा ये रिस्क मैनेजमेंट? मैंने 5 बार बताया रिस्क मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजर, वेरी गुड। क्या होता है ये रिस्क मैनेजमेंट? आपके इसमें बताइए मुझे, लैंग्वेज में चलेगा, कोई बात नहीं। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? प्रोजेक्ट में हमें रिस्क मैनेज क्यों करनी है, क्यों जरूरत है उसकी? एंटिसिपेट करनी की पड़ेगी रिस्क, आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी रिस्क प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले या प्रोजेक्ट जब ऑनगोइंग होता है। तो हम ये क्यों करते हैं रिस्क मैनेजमेंट, हमें क्यों करना चाहिए? वाई देर इज अ नीड टू मेंटेन द रिस्क रजिस्टर। रिस्क रजिस्टर हम मेंटेन करते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है? रिस्क प्लान बनाते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है? व्हाट इज मीन बाय रिस्क मैनेजमेंट? यस, बोलिए संकेत, बोलिए। सर अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो। हाँ, आवाज़ नहीं आ रहा संकेत आपका, जोर से बोलिए थोड़ा। सर हाँ, आवाज़ नहीं आ रहा, जोर से बोलिए। यस संकेत, यस। अगर बिग प्रोजेक्ट होगा तो टाइम शेड्यूलिंग का रिस्क हो सकता है, अगर टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। ओके। या फिर अगर कोई मॉड्यूल क्लाइंट ने चेंज करने को बोला तो उसमें भी टाइम जा सकता है। ओके, तो हमें रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है उस हिसाब से। हाँ, ये विद इन टाइम कंप्लीट। ओके ओके, ये हो गया टाइम का रिस्क। हाँ, और कौन सी रिस्क आ सकती है? कॉस्ट की रिस्क आ सकती है कुछ? ये हो गया टाइम की रिस्क। तो वी कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। सो रिस्क मैनेजमेंट इज नथिंग बट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट हैपन्स टू थ्रू आउट द
project. You have to track the particular project. So this is done on a regularly basis on ongoing projects. You have to manage the risk, you have to anticipate the risk, है क्या नहीं? आपको पहले ही भापना पड़ता है कि कौन सी रिस्क आ सकती है इसमें, या कौन से थ्रेड्स है, कौन से थ्रेड्स आ सकते हैं. सो यू शुड हैव अ प्लान टू मैनेज दैट पर्टिकुलर रिस्क, है क्या नहीं? तो उसके असर प्रोजेक्ट के ऊपर कम हो सकते हैं. सो that is risk management. Then quality management. अभी quality management क्या है? Next project management process, that is quality management. Yes, कौन बता सकता है ये quality management क्या है? quality management, quality को मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है? अभी क्वालिटी कब डिसाइड हो जाती है? ड्यूरिंग द इनिशिएशन फेज. कौन सा क्वालिटी का प्रोजेक्ट चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? मीन्स यू आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन द इनिशिएशन फेज विद द हेल्प ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर. सो एट द इनिशियल फेज you have an idea what type of the product, what type of the quality you want to deliver to your stakeholder. Am I right? So उसका क्वालिटी प्लान होता है, एक्सेप्टेंस क्वालिटी प्लान होता है, और जो आपका जो एंड यूज़र है, आपका जो प्रोजेक्ट यूज़ करने वाला है, सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला है, वो आपको बता देता है भाई मुझे ये क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है. सो अकॉर्डिंग टू यू हैव टू डिलीवर द प्रोडक्ट, यू हैव टू डिलीवर द सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट टू द एंड यूज़र अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर क्वालिटी स्टैंडर्ड. सो in planning and design there is a quality acceptance plan is there, quality control and quality procedure is there, quality control procedure is there. So it will give the guarantee of quality assurance. So that project manager develop a quality policy which define the quality control procedure that will guarantee the quality assurance. So it begins in the initial phase, and in planning and design all these particular quality control procedure are maintained by that particular project manager, and it will give you the guarantee of quality assurance. कौन सी आपने क्वालिटी बोली है, उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट आप उसको देने जा रहे हो, डिलीवर करने जा रहे हो. सो दिस इज अबाउट द क्वालिटी मैनेजमेंट. हमको पहले ही डिसाइड करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन फेज उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट यू आइडेंटिफाई द क्वालिटी, व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर स्टेक होल्डर, एंड देन your project manager develop a quality policy. In that particular quality policy it will define all the things, means the quality control procedure, and that particular quality control procedure will guarantee the quality assurance of that particular product. So this is nothing but the quality management. Understood? Aishwarya? Aishwarya? Rohan? Rohan is there. Rohan More. Prajakta. Yes. Mamta. Mamta Chaudhary. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ममता है क्या? ममता, ऐश्वर्या, वैष्णवी. Yes, sir. ओके ओके. ममता नहीं है शायद ना? ममता नहीं, ऐश्वर्या भी नहीं. ममता थी ना सुबह, मोबाइल रख के चली गई क्या? ऐश्वर्या पाटिल. ठीक है. देन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट.
कौन बता सकता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्या होता है? स्टेक होल्डर मीन्स व्हाट? कोई स्टेक होल्डर जिसने आपको प्रोजेक्ट दिया या जो प्रोजेक्ट का यूज करने वाला है, दैट इज स्टेक होल्डर. यू हैव टू मैनेज दैट स्टेक होल्डर मीन्स you have to understand the needs of the requirement of that particular stakeholder, and also you have to frequently communicate with the stakeholder throughout the project life cycle, so their requirement can be met very easily. That is a stakeholder management. आपको stakeholder का management करना है, मीन्स इसको उसकी रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना है, आपको उसके साथ हर वक्त बातें करनी पड़ेगी. सो हाउ यू विल मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंड यूजर और स्टेक होल्डर. दिस इज नथिंग बट द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, कॉस्ट मैनेजमेंट. अभी ये तो बहुत सिंपल है, कौन बताएगा? कॉस्ट मैनेजमेंट. कॉस्ट मैनेजमेंट करना है मीन्स क्या करना है? यस वैष्णवी बोलिए. सर कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब उधर अपने प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा होगा उसका पहले ही एस्टिमेशन करके रखना. हाँ यस फिजा बोलिए, बोलिए फिजा. उसको पहले ही एस्टिमेट करना रखना है. हाँ, पहले ही एस्टिमेट करना कि कितना कॉस्ट लगने वाला है प्रोजेक्ट में. ओके ओके ओके. कितना कॉस्ट लगने वाला है, कुछ कॉस्ट बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है. So yes, you have to estimate the cost associated with each and every task. Then after you have estimating the cost, then you can create the budget to cover those expenses. है क्या नहीं? कॉस्ट आपने पहले निकालनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको बजट करना पड़ेगा. भाई इतना इतना बजट इसको है, इतना प्लानिंग और डिज़ाइन को इतना बजट लगने वाला है, डेवलपिंग के लिए इतना बजट लगने वाला है, एग्जीक्यूशन के लिए इतना पैसा जाने वाला है, टास्क असाइन करने के लिए, कुछ डेवलपमेंट के लिए, कोडिंग के लिए इतना पैसा लगने वाला है, टेस्टिंग के लिए इतना पैसा लगने वाला है क्या नहीं, डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए इतना पैसा लगने वाला है. सो यू हैव टू कवर ऑल द एक्सपेंसेस विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो दैट इज नथिंग बट इट इज द कॉस्ट मैनेजमेंट. Once the execution phase begin, monitor the cost of that particular project at it progresses. जैसे ही एग्जीक्यूशन फेज चालू होता है, आपको हर वक्त वो कॉस्ट क्या करनी पड़ती है, मॉनिटर करनी पड़ती है क्या नहीं. जैसे कि आपने डिफाइन किया दैट पर्टिकुलर टास्क विल बी कंप्लीटेड इनटू द 3 days और उसके लिए 5 लोग लगने वाले हैं, बट ऐसा हो सकता है कि वो 3 दिन के बदले में उसको 5 दिन लग सकते हैं. तो आपको मॉनिटर करना पड़ता है, भाई ये काम क्यों नहीं हुआ. एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू हैव टू मॉनिटर. सो भाई आप एम्प्लॉय को बोल सकते हैं आपके, सो दिस पर्टिकुलर टास्क इज असाइंड टू यूर टीम एंड यू हैव टू बी कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टास्क विद इन 3 days ओनली. एम आई राइट? उसके ज़्यादा दिन आपको लगने नहीं चाहिए, वरना क्या हो जाएगी, आपकी कॉस्ट, प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. अंडरस्टूड? सो वंस द एग्जीक्यूशन फेज बिगिन, मॉनिटर द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस. दिस इज द कॉस्ट मैनेजमेंट. देन इशू मैनेजमेंट. क्या है ये इशू मैनेजमेंट? रिजॉल्विंग एंड आइडेंटिफाइंग इशू. हाँ, रिजॉल्विंग एंड आपके लैंग्वेज में बताइए. इशू मैनेजमेंट आपके लैंग्वेज में बताइए. हम इशू, अब कोई इशू आता है तो भाई प्रोजेक्ट में कुछ इशू आ जाता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, जैसे कि इशू आ गया कि जो आपके बंदे थे, जो आपके टीम मेंबर थे, वो चले गए, है क्या नहीं, ये वो हो गया, इशू क्रिएट हो गया. तो वो कैसे आप मैनेज करोगे? उसके लिए कुछ प्लान है क्या आपके पास? कुछ गलत हो गया प्रोजेक्ट चालू होते वक्त, तो उसके लिए कुछ आपके पास प्लान है क्या? वो आपको सब मैनेज करना पड़ेगा, है क्या नहीं. जैसे कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर है, आपने 10 एम्प्लॉय उस प्रोजेक्ट के ऊपर डिप्लॉय किए और उसमें से 5 बंदे चले गए, 5 एम्प्लॉय क्या हो गए, कंपनी छोड़ के चले गए. तो वो काम कौन करेगा प्रोजेक्ट का? क्योंकि आपको विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम आपको प्रोजेक्ट तो डिलीवर करना है, आपको देना है क्लाइंट को. तो 5 लोगों का काम कौन करेगा? तो इशू मैनेजमेंट मीन्स व्हाट?
who is going to solve that particular issue, who is going to resolve that particular problem, who is going to responsible for that particular problem if any issue arises. So you must have the plan of that particular issue, each and every issue. This is the issue management. So अगर कुछ इशू आता है तो who is going to take a decision, who is responsible, who is take a action. So that is defined in the particular plan, and who is going who has the authority to take a action. So all these things you have to you have a plan of all these things. That is a issue management. देन चेंज मैनेजमेंट. अभी चेंज मैनेजमेंट क्या होता है ये, ठीक है ना, हमने देखा है चेंज मैनेजमेंट. चेंज मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, जैसे कि रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, कस्टमर ने पहले बोला था कि ऐसा ऐसा चाहिए था मुझे, ऐसी रिक्वायरमेंट है उसकी, ऐसी फंक्शनलिटी चाहिए प्रोजेक्ट में, बट आफ्टर कंप्लीटिंग पर्टिकुलर सम मॉड्यूल और आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट और एट द इन द पर्टिकुलर फेज कस्टमर क्या बोलता है, भाई ऐसी रिक्वायरमेंट क्या नहीं चाहिए मुझे, ऐसा थोड़ा सा चेंज हो गया है, ऐसी फंक्शनलिटी चाहिए नहीं चाहिए मुझे, ऐसा चाहिए, ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए, थोड़ा ऐसा चाहिए. तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया. दैट इज अ चेंज मैनेजमेंट. और चेंज मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, so for that purpose you must have the change management plan. If change, there is a change in the project, so who is going to manage that particular change, what is the different procedure of that particular change, and what are the different forms of that particular change. So you have a document of that particular change management. वो चेंज मैनेजमेंट कौन करेगा, उसकी प्रोसीजर क्या है, उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे, और वो डिफरेंट चेंज कौन से फॉर्म है, उसके चेंज करना है तो क्या क्या चेंज हो सकता है. So you have to define early in the project. You have to define before starting the execution of that particular project. आपको execution के पहले ही सब करना पड़ेगा. At the time of requirement you have to means after gathering requirement you can discuss with your stakeholder, you can discuss with end user, भाई आपकी ये requirement है, बट ये रिक्वायरमेंट इसमें से कौन सी चेंज हो सकती है, या इसमें चेंज प्रोसीजर क्या है, या कौन सा रिक्वायरमेंट आपकी चेंज हो सकती है. यू हैव अ प्लान विथ यू एट द टाइम ऑफ पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट. एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ यूर स्टेक होल्डर. कॉन्ट्रैक्ट के वक्त आप बोल सकते हो, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जब होता है एंड यूजर में और प्रोजेक्ट मैनेजर में. सो आपको उस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू क्लेरिफाई ऑल दिस थिंग. भाई आपकी ये रिक्वायरमेंट है, इसमें से कौन सी चेंज हो सकती है, अगर आपको चेंज करना है तो उसकी प्रोसीजर क्या है, या कौन से रिक्वायरमेंट चेंज हो सकते हैं. आप क्लियरली बोल सकते हैं ये रिक्वायरमेंट आपकी चेंज नहीं होगी बाद में जाके, नहीं तो आप बोलेगी ये चेंज करो तो पूरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा. आप उसको ऐसे बोल सकते हो. सो दिस इज द चेंज मैनेजमेंट. सो change management is nothing but it will define the different procedure of change management and the different forms of that particular change, and who is going to see that particular change of that particular requirement. So this is about the change management. देन प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट. अभी ये प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है. सो इट इन्वॉल्व्स द वर्किंग एंड सप्लायर, एंड देयर इज a normally process around how to engage and contract with them, so everyone knows what to expect and what they getting for their money. जैसे कि सप्लायर और वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसमें ये प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट होता है. उनको पता होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए और कौन से हिसाब से क्या चाहिए, सप्लायर को पता होता है, और वो कितने पैसे देने वाले हैं, वो मैनेज उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, हाउ टू एंगेज
that particular supplier. So this is about the procurement management. So that particular procurement management involved in the supplier, working with the supplier. Then next, communication. अभी कम्युनिकेशन एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है, ऐसा हम बता सकते हैं, क्योंकि यस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बिकॉज वी हैव टू डिफाइन द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. सो हु इज गोइंग टू कम्युनिकेट इन द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, है क्या नहीं. जैसे कि समटाइम सम इशू इज there in the project. So if particular issue arises, so who is going to resolve that particular issue, how to communicate that particular issue, and to whom we have to communicate that issue. So there is a communication plan. communication plan में आपको सबको बता दिया जाता है कि कौन सा अगर कुछ इशू होता है, कुछ कम्युनिकेट करना है किसी को, तो उसके लिए मेथड क्या यूज़ करनी है. ईमेल पे भेजना है या व्हाट्सएप पे भेजना है या फ़ोन करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैसे उसके मेंटेन करने हैं. सो देयर इज़ अ कम्युनिकेशन प्लान, दैट इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस. कम्युनिकेशन आल्सो अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस. या कुछ प्रोजेक्ट में इशू आ गए, कुछ चेंज हो गया, तो किसको कम्युनिकेट करना है, उसकी ऑथोरिटी कौन है, कम्युनिकेशन करने के मेथड कैसे है, उसका डॉक्यूमेंट कैसे करना है. So this is about the process of communication that involves in the project management process. Understood? Yes sir. Okay. हाँ, अभी ये बताइए मुझे सब. वेरी सिंपल. द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर है, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं, द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर. बहुत सारे ये है प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल. उसमें फर्स्ट है स्कोप मैनेजमेंट. सो इट डिफाइन द वर्क नीडेड टू बी कंप्लीट द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़. वो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के लिए कौन सा वर्क की ज़रूरत है. इट विल डिफाइन द स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर मैनेजमेंट. देन टास्क मैनेजमेंट, टास्क का प्लानिंग करना है, प्लानिंग द टास्क एंड डिफाइन देयर डिलीवरेबल्स. अब ये सब काम कौन करता है? स्कोप मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, शेड्यूल मैनेजमेंट, ये सब कौन करता है? हु इज गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क, हु इज गोइंग टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? Project manager sir. हाँ, दिस इज द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर. वेरी गुड. टास्क मैनेजमेंट. अभी क्या है ये टास्क मैनेजमेंट? प्लानिंग द टास्क एंड डिफाइनिंग देयर डिलीवर्स. प्लानिंग द टास्क मीन्स कौन से टास्क कौन एग्जीक्यूट करेगा, ये दिस इज टास्क मैनेजमेंट. देन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे कि आपके लोग होते हैं, यूजिंग द पीपल, कैपिटल, मटेरियल एंड ऑल अदर रिसोर्सेज इफिशिएंटली. सो ऑल दिस particular role of a project manager. Another role, that is a team management, and assemble and leading a team means that particular project manager has to assemble the team of people and assign that particular team a particular project and lead that particular team. That is called as a team management. Then schedule management. So analyzing the duration of activities to create the project schedule. कौन से एक्टिविटीज को कितना देर लगेगी, उसको शेड्यूल बनाना पड़ेगा. एंड उसको प्रोजेक्ट का स्टेटस मॉनिटर करना पड़ेगा. भाई प्रोजेक्ट का ये प्रोजेक्ट 6 महीने में कंप्लीट होना चाहिए. सो ये एक्टिविटी 1 महीने में, दूसरी एक्टिविटी 3 महीने में, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी होते. सो ही हैज़ टू मॉनिटर द पर्टिकुलर शेड्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर activity. So this is the schedule management. Then quality management. He is a responsible person to establish a quality policy in the project. है ना, quality policy उसको define करेगा, and that particular policy, quality policy gives the guarantee of that particular quality assurance. उसको quality policy define करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट में when your project start. So according to that particular quality policy, you have to deliver the particular project or a product. Then cost management.
cost management में he has to, that particular project manager has to estimate the cost and create the budget of that particular project. Then stakeholder management, this is another responsibility of or you can say the role of project manager, that is a stakeholder management. That particular project manager has to satisfy the stakeholder expectation and communicating with them throughout the project life cycle. So this is the stakeholder management. Then risk management, उसको रिस्क आइडेंटिफाई करनी पड़ती है प्रोजेक्ट मैनेजर को. ही हैज़ टू मॉनिटर द रिस्क व्हेन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्टार्ट एंड हैज़ टू मिनिमाइज दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिस्क. ठीक है ना, उसको वो मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं वो रिस्क को, वो देखना पड़ेगा उसको. दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट. दिस इज द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर. देन the another last role of project manager, that is the status reporting. He has to monitor and the track of the project. He has to monitor and the track the progress and the performance and generating the report and other documentation. He has to generate the reports. उसको मैनेजमेंट को दिखाना पड़ता है भाई. प्रोजेक्ट मैनेजर टॉप मैनेजमेंट को बताता है भाई ये अपने प्रोजेक्ट चालू है, इसका स्टेटस ये है. सो ही हैज़ टू मेंटेन ऑल द डॉक्यूमेंट. सो एट द टाइम ऑफ मीटिंग, इन द मीटिंग विद द टॉप मैनेजमेंट, ही कैन एक्सप्लेन विथ अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. इस प्रोजेक्ट का इतना स्टेटस है, ये प्रोजेक्ट इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा, और ये दूसरा प्रोजेक्ट है, ये इसको इतने पैसे और लग सकते हैं, इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा, या इसको और रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है अगर हमें फास्ट करना है तो. सो ही हैज़ टू मेंटेन ऑल द स्टेटस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ओके, सो दिस आर द डिफरेंट रोल, यू कैन से द रोल और you can say the responsibilities of the project manager in the project life cycle. Correct? Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. So मुझे लगता है हम रुकेंगे आज के दिन. ठीक है? यस, बोलिए. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Today we will stop here. ममता, शोभित, ऐश्वर्या, संकेत, रोहन. ममता है क्या? ममता चौधरी और ऐश्वर्या. ऐश्वर्याला सर नेटवर्क नाही आहे. ओके. और ममता? ती पण नाही आहे. ओके. ठीक है.